So from few days, I'm getting a lot of responses and comments in my YouTube and on my Instagram and WhatsApp that how I can start my own agency, what is the process, what is the framework, and कैसे एक beginner agency उन $10,000 per month की revenue तक पहुंच सकता है. तो I thought कि let's create a video on this, and this is one of the most demanding topic on my channel right now, and also people are asking कि from where you have learned performance marketing, and a lot of queries I'm getting from few days. So now I'm here with a very brand new video where I'm just going to discuss all of these kind of stuff, that how you can start these agency stuff, how you can learn performance marketing and all the other things, right? So without any further ado, let's get started. So here I'm sharing my screen, right? And I have not prepared anything. मतलब जो भी चीज़ आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव डिड सो फॉर इन लास्ट 4 years and how I have built my agency, right? I am going to tell you every single thing. सो वॉट डज इट मीन बाई एन एजेंसी, राइट? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग टैकल करेंगे, दैट वॉट डज इट मीन बाई ओपनिंग एंड रनिंग एन एजेंसी, राइट? सो बेसिकली एजेंसी इज़ वॉट वेर यू आर डूइंग द थिंग्स ऑन द स्केल, राइट? दिस इज़ अ फेज, दिस इज़ नॉट जस्ट अ बिजनेस, दिस इज़ अ फेज. सबसे पहले आप एक फ्रीलांसर बनते हो, ठीक है? आप एक फ्रीलांसर बनते हो. जब आपके पास इतने काम होते हैं, व्हेन यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट बाय योर ओन, तब आप क्या करते हो, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो जिसको बोलते हैं एजेंसी, राइट? उसको बोलते हैं एजेंसी. एंड इसको स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट यू हैव टू मास्टर दिस वन, राइट? तो इस पार्ट पे आप डायरेक्टली मत आओ. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इस पार्ट पे आप डायरेक्टली मत आओ. इस पार्ट पे आने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू गॉन थ्रू, एंड अगर इसमें आप आए विदाउट द प्रॉपर प्रिपरेशन एंड ऑल, यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलेसेस, राइट? बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल. जितना आज लोगों ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इसको हलवा बना के रखा हुआ है ना, दिस इज़ नॉट दैट मच हलवा. It takes a lot of efforts, it takes a lot of operation management and a lot of more things. You need a good people, you need more clients, you need the proper operation, you need the proper documentation, SOP, you need to have the structured process of every single thing whatever you are doing. तो I would always suggest you कि अगर आपने आज तक एक क्लाइंट के साथ काम नहीं किया है, नो क्लाइंट सो फार, ठीक है, तो go for this freelance work first of all. If you don't want high number of clients, if you don't want the operational chaos, then go for the freelancing, right? This is the better option for you at this point of time. And when you are ready कि भाई अब मैं 10 client 15 client को handle कर सकता हूँ very easily, then you have to go for the agency. Because as like I have also started in this way only. So if you really want to keep up growing, and if you don't want to face a lot of chaotic management and all, so firstly go for the freelancing. तो freelance को start करने के लिए क्या कर सकते हैं, right? freelance को start करने के लिए भी there is a process. So mainly सब लोग कहते हैं ना कि go and find a niche, go and find a niche. तो ये यहीं से start होता है, that you when you are a freelancer, जब आप एक freelancer होते हो, right? जब आप एक freelancer होते हो, let me change the color first. Let me choose red. ठीक है, perfect. So when you are a freelancer, तो आपको you are the solo one जो सारी चीज़ों को मैनेज करता, राइट? तो मैनेज आप कैसे कर पाओगे? when you are the expert of that specific thing, तभी आप उस चीज़ को मैनेज आउट कर पाओगे. अदरवाइज यू विल ऑल्सो बी इन द प्रॉब्लम. तो आपको यहीं से ये फाइंड आउट करके चलना पड़ेगा कि यार व्हाट इज़ माई स्किल, ठीक है? अब स्किल बिल्डिंग यहीं से होती है, ठीक है? देन आफ्टर द पैशन फाइंडिंग इज ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो द फर्स्ट एंड द अटमोस्ट थिंग इज दिस कि यू हैव टू फाइंड आउट योर स्किल्स. निश के पहले, सेगमेंट के पहले, इंडस्ट्री के पहले यू हैव टू फाइंड योर स्किल. बिकॉज एज अ एजेंसी ओनर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि आप विदाउट स्किल आप एजेंसी को ओपन कर लो. हर एक फाउंडर को, किसी भी फाउंडर को देख लो, या फिर पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी है, या फिर मार्केटिंग एजेंसी है, या फिर व्हाट एवर द काइंड ऑफ एजेंसी इज दैट, उसके फाउंडर के पास वो स्किल होगी ही होगी. दैट इज़ वॉट आई हैव सीन सो फॉर. 95% ऑफ द केसेज में ये चीज़ होती है कि जो भी फाउंडर है उसके पास एक स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल होती ही होती है. तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव अ टेक्निकल स्किल, ठीक है? अब इसमें टेक्निकल स्किल में क्या हो सकता है? आप चाहे परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लो, आप चाहे पर्सनल ब्रांडिंग सीख लो, चाहे आप डेवलपमेंट सीख लो, ठीक है? लाइक कोड डेवलपमेंट एंड वॉट एवर दैट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट यू वांट टू लर्न, आप सीख सकते हो. और यू कैन लर्न द कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है? आप कंटेंट मार्केटिंग सीख लो, आप डिज़ाइनिंग सीख लो, you can learn Google Ads. Means you can learn any sort of thing, whatever the skills are there out there in the market, you can learn the video editing, right?
you can learn the video editing, and there is a lot of more skills which you can learn. तो I would always say कि भाई कभी भी कोई फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करने से पहले, एजेंसी जर्नी स्टार्ट करने से पहले कोई एक टेक्निकल स्किल को मास्टर कर ही लो, ठीक है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द अपकमिंग जर्नी, राइट। बिकॉज जब सब लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हारे पास सेल्स की पावर है, सेल्स तुम बहुत अच्छा कन्वर्ट कर लेते हो, क्यों कर लेते हो? बिकॉज उस बंदे के पास ऑलरेडी पता होता है कि हाउ टू कन्विंस द विद द क्लाइंट एंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट विद द फैक्ट्स। अगर आपको ये पता नहीं कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द मार्केटिंग, तो आप कैसे किसी क्लाइंट को फैक्ट्स के बेसिस पे कन्वर्ट करोगे? कैसे आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसको आप सोल्यूशन दोगे? यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्केटर इन द लाइक सेल्स कॉल, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डेवलपर इन द सेल्स कॉल, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू क्लोज द डील अनटिल एंड अनलेस आप एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो जहाँ पे आपके पास खुद की अपनी सेल्स टीम नहीं है, राइट। तो दिस इज द बेसिक कि आपको एक टेक्निकल स्किल मास्टर करना पड़ेगा। अब जस्ट सपोज कि आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग मास्टर कर लिया, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मास्टर कर लिया। अब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना वो स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क है कि कैसे आप एक स्किल से पैशन की तरफ जाओगे, पैशन के बाद आप अपने निश को फाइंड आउट करोगे, फिर आप इंडस्ट्री में टैप इन करोगे एंड हाउ यू विल स्टेप एंड ग्रो योर एजेंसी, राइट। तो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना। तो दिस इज द फर्स्ट डॉट जो मैंने आपको स्किल्स का बताया ना, दैट इज द फर्स्ट डॉट। अब मान लो कि आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर दिया। अब देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में दो तरीके की चीज़ होती है। आप चाहे सेल्स में काम करो, ठीक है, सेल्स मतलब जो होता है ना ई कॉमर्स में कि इतने ऑर्डर्स आए, इतनी सेल्स आए, या फिर सेकंड इज द लीड जनरेशन, ठीक है, लीड जनरेशन जहां पे आप सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए आप काम करते हो। तो जस्ट सपोज कि यू आर वर्किंग इन द सेल्स, आप सेल्स का काम करो, या फिर आप अगर एक ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केटर हो तो भी इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आई वुड सजेस्ट कि एक पर्टिकुलर कोई पकड़ के चलो सो दैट यू जस्ट बिकम द एक्सपर्ट। बिकॉज सेल्स का पूरा एक अलग फनल होता है, लीड जनरेशन का पूरा एक अलग फनल होता है, सो यू हैव टू मास्टर दैट फनल। अब जस्ट सपोज कि आपने सेल्स को मास्टर कर लिया, ठीक है, आप ऑर्डर्स लाने में मास्टर हो एंड आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या निकलता है? आपको किसके लिए अब आप काम करोगे? ऑफकोर्स आप किसके लिए काम करने वाले हो? यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द D2C ब्रांड्स, ठीक है, क्योंकि सेल्स वगैरह मेनली उन्हीं ब्रांड में आती है, लाइक ई कॉमर्स में आ गया, ठीक है, या फिर इफ इज देयर एनी कोच हु इज सेलिंग द डिजिटल प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दिस, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। एंड आप इसमें अवेयरनेस पे काम कर सकते हो, राइट, इन दिस यू कैन वर्क ऑन द अवेयरनेस ऑल्सो। तो मेनली क्या है कि सेल्स इज़ द काइंड ऑफ जोन जहाँ पे आप मेनली ई कॉमर्स के लिए ही काम करोगे, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया ना कि स्किल्स से आप अपने निश को फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल गया कि अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लिया, ठीक है, दिस वन थिंग इज डन, आपने निश फाइंड आउट, आपने थोड़ा सा और सेगमेंट अपने आप को कर लिया, सेगमेंटेड कर लिया, यू फाइंड आउट द सेल्स वन, देन नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द निश। तो निश आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपने अगर सेल्स सीखा है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द D2C और अवेयरनेस कैंपेन्स व्हाटएवर, ठीक है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट योर लाइक निश। अब जैसे सपोज कि आपने लीड जनरेशन सीख लिया। अब लीड जनरेशन सीखने के बाद क्या है कि यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट ऑफ वेज, सो यू कैन वर्क फॉर द कोचेस, ठीक है। मतलब लीड जनरेशन में थोड़ा सा आपको वाइड अप हो जाता है रेंज, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर द लीड जनरेशन फॉर द कोचेस, ठीक है। You can go for the any type of high ticket businesses, high ticket businesses. You can go for any sort of like SaaS product who is selling and all. तो this is how it works actually. तो लीड जनरेशन में बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट है, सेल्स में भी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट है। द थिंग इज कि आपको क्या करने में इंटरेस्ट है, राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट। अब आपने भाई क्या फाइंड आउट कर लिया? आपने अपना स्किल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यू फाइंड योर स्किल, डन, यू फाइंड द लाइक वॉट, आपने थोड़ा सा अपने आप को सेगमेंट कर लिया उस स्किल में, ठीक है, यू हैव सेगमेंटेड योर सेल्फ, देन आफ्टर यू हैव फाइंड आउट योर निश, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि अभी तो मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग बताया, अब मान लो मैं वीडियो एडिटिंग का बता रहा हूँ। तो वीडियो एडिटिंग में कौन मेनली काम कराना चाहता है? द कोचेस, ठीक है, मेनली कोचेस के पास बहुत पैसे होते हैं, वो कराना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर के पास चले जाओ, आप यूट्यूब क्रिएटर के पास चले जाओ, ठीक है, या फिर आप किसी बिजनेस के पास चले जाओ। बिजनेस कोई भी ऐसा हो सकता है जो ऑनलाइन प्रेजेंस अपना ग्रो करना चाहता हो, जस्ट लाइक रियल इस्टेट आप ले लो, ठीक है, रियल इस्टेट वाले भी एडिटिंग कराना चाहते हैं। देन यू कैन सॉफ्टवेयर बिजनेस, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर वाले भी कराना चाहते हैं। देन यू कैन गो फॉर द
ई कॉमर्स के पास भी आ जा सकते हो, ठीक है। यू कैन ज्वाइन एनी एजेंसी। तो मेनली दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। आप किसी एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हो। तो एज अ वीडियो एडिटर यू कैन गो इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप गूगल में हो तो गूगल में ऐसे बिजनेसेस आते हैं जो जिनके प्रोडक्ट हाई टिकट होते हैं, ठीक है, मतलब 5,000 10,000 के प्रोडक्ट्स। सो यू कैन गो फॉर द लाइक रियल इस्टेट, ठीक है। आप रियल इस्टेट में जाओ, अगेन गो फॉर द लाइक ई कॉमर्स। अब इसमें भी ई कॉमर्स एंड रियल इस्टेट एंड लीड जनरेशन में आ सकता है। तो आप ई कॉमर्स पे चूज़ कर सकते हो कि भाई हाई टिकट प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई ऐसे, जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग किया था अपनी जर्नी इन द ई कॉमर्स विद द चिकनकारी ब्रांड्स, ठीक है। तो चिकनकारी में क्या होता है कि टिकट साइज़ बड़ा होता है, 5,000 10,000 15,000 20,000 रुपये तक की साड़ीज़ आती हैं उसमें, इवन 50,000 1 लाख तक की भी साड़ीज़ आती हैं। तो गूगल एड परफॉर्म रियली वेल व्हेन इट कम्स टू द हाई टिकट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग, तो डिज़ाइनिंग में आपका रियल इस्टेट हो गया, टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, कोचेज़ हो गया। तो डिज़ाइनिंग का तो हर जगह काम आता है, लाइक वॉट एवर द प्लेसेस देयर। आप किसी एजेंसी को ज्वाइन करोगे, मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन करोगे, तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क देयर एज अ you know like for the creative designing for the meta ads and google ads and whatsoever, content marketing coaches हो गए, businesses like whatever like आप किसी भी स्किल को सीख लो। आज के टाइम पे मार्केट इज़ कम्प्लीटली ओपन फॉर यू। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी द एक्सपर्ट इन वॉट यू डू। बिकॉज मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन टू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 years। आज के टाइम पे मैं कम से कम जब भी कभी हायरिंग करता हूँ ना, तो कम से कम 10 से 12 ग्रुप्स में मैं मैसेजेस ड्रॉप करता हूँ हायरिंग के लिए कि मुझे किसी एडिटर की नीड है, किसी डिज़ाइनर की नीड है। एंड 12 में से मेरे पास पता है ढंग के लोग कितने आते हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे पास मैसेजेस कम से कम 30 से 40 मैसेजेस आते हैं कि आई वॉन्ट टू डू हेल्प, गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। बट आउट ऑफ दैट आई समटाइम इट इज़ लाइक 0 और 1, 0 1 2 इट मीन्स कि कंपटीशन बहुत कम है इफ़ यू कम टू द टॉप, ठीक है। अगर आप टॉप पे हो तो कंपटीशन इज़ वेरी रेयर, ठीक है। तो डोंट बी लाइक हेसिटेंट अबाउट दिस कि यार कंपटीशन बहुत है। नहीं, कंपटीशन नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर ओन क्राफ्ट, ठीक है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आपने स्किल को मास्टर कर लिया, ठीक है, आपने सेगमेंट कर लिया, आपने आपको सेगमेंटेड कर लिया। यू हैव ऑल्सो फाइंड आउट योर निश। जिस तरीके से मैंने बताया कि आपका पैशन ही बताएगा कि आपका निश क्या है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा पैशन क्या है, मुझे इंटरेस्ट किस में आता है, मुझे लीड जनरेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब लीड जनरेशन में मुझे सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल क्या लगा, मुझे कोचेस लगा। तो आई चूज़ द कोचिंग इंडस्ट्री, आई चूज़ द ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है। तो मैं बेसिकली ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लेवल पे बाइंग हो, जहाँ पे फोमो हो या फिर एक्साइटमेंट हो, जहाँ पे पैसे देने में लोग हिचक ना खाएं, ठीक है। सो आपको निश इस बेसिस पे चूज़ करना है। अब देखो, निश चूज़ करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका पैशन तो ठीक है, आपने चूज़ कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ पैशन, इट्स परफेक्ट। बट अगर हम लोग बात करें निश को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो मेनली क्या होता है कि क्या आपके निश के जो भी प्रॉस्पेक्ट हैं, आर दे रेडी टू कम ऑनलाइन, ठीक है। आर दे रेडी टू कम ऑनलाइन, ठीक है। अगर येस देन दिस निश इज गुड। क्या उस ऑडियंस लाइक जो भी आपका निश है, क्या वो निश ओवर 50,000 प्लस बिजनेसेस उसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। इफ़ येस देन गो फॉर इट। देन आप देखो कि इस मार्केट में लाइक एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन द सेंस कि टिकट साइज़ क्या होता है। अगर मान लो कि अगर आप एक ऐसे ब्रांड को रीच आउट कर रहे हो जो 300 रुपये का सामान सेल करता है, 300 से लेके 500 रुपये का सामान सेल करता है, एंड आप उससे कह रहे हो कि आई चार्ज 1 लाख फ्रॉम यू, भाई इसको प्रॉफिट निकालते निकालते इसका जन्म निकल जाएगा। लाइक आई वुड नॉट से जन्म, बट प्रॉफिटेबल होते होते इसको बहुत टाइम लगेगा। फिर कहाँ से आपका 1 लाख का वो लाइक एजेंसी फीस निकालेगा, ठीक है। तो आई वुड ऑलवेज से कि निश हमेशा ऐसा चूज़ करो जिसके पास पैसे हो, एंड अगर वो एक प्रोडक्ट को सेल करे तो एटलीस्ट 50,000 प्लस का तो उसका बजट हो ही हो, लाइक एवरेज टिकट साइज हो, ठीक है। सो दैट आपका 1 लाख निकालने के लिए सिर्फ उसको 2 लोगों को सेल करना पड़े अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड द निश, ठीक है। देन द फोर्थ थिंग इज दिस कि उस ऑडियंस में इट इज़ ईजी टू गेट लीड्स और सेल्स, ठीक है। उस ऑडियंस में क्या होना चाहिए, इट इज़ ईजी टू गेट लीड्स एंड सेल्स, अदरवाइज फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी। अगर वो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ये कहोगे कि मैं कचड़े वाले बिजनेस के लिए, जो गार्बेज बिजनेस होते हैं, आप उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करोगे या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग करोगे, दैट इज़ नेवर गोना हैपन। मतलब क्या ही कर लोगे बताओ। वो रैंडमली घर पे जाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है बड़े बड़े कंपनीज के साथ, एंड फ्रॉम दैट दे डू द थिंग्स। अब आप कहोगे कि यार मैं कचड़े वाली कंपनी के पास जाके कहूँगा कि आई विल डू द कंटेंट मार्केटिंग फॉर यू,
नो वन इज़ गोइंग टू बाई, बिकॉज उनको पता है कि मेरा धंधा ट्रेडिशनल है तो मैं इसी में ही रहूँगा. नाउ इफ़ यू गो टू द एनी रियल इस्टेट बिजनेस, दे आर सो मच हैप्पी टू गो विथ यू. ठीक है, आप किसी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के पास जाओ, ठीक है, या फिर किसी फिनटेक कंपनी के पास जाओ, दे आर प्रीटी मच गुड इनफ टू गिव यू द मनी, बिकॉज उनका एक ऑर्डर एक कंपनी से एक सेल से ही आपका पूरा एजेंसी फीस निकल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो द बेटर वे to like find out the niche, right? All right, I'm really sorry, I just got a call. Next thing is this कि अभी तो हमने अपना स्किल फाइंड आउट कर लिया, सेगमेंटेड अपने आप को कर लिया, हमने निश भी फाइंड आउट कर लिया. नाउ इट्स टाइम कि कैसे हम अपने फ्रीलांस जर्नी को कैसे एजेंसी जर्नी में कन्वर्ट करें. बट बिफोर दैट, अगर आपने एक माइलस्टोन पूरा कर रखा है, माइलस्टोन इन द सेंस कि माइलस्टोन शुड बी यू हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स. ठीक है, 5 to 10 क्लाइंट्स के लिए अगर आपने काम कर रखा है तो इट्स अ गुड नंबर. ठीक है, सेकेंड थिंग कि यू हैव टेस्टिमोनियल. ठीक है, यू हैव टेस्टिमोनियल और केस स्टडी टू शो केस. ठीक है, थर्ड थिंग इज़ दैट यू हैव सम प्रीटी मच डिसेंट अमाउंट. ठीक है, आपके पास डिसेंट अमाउंट होना चाहिए सो दैट यू कैन इन्वेस्ट ऑन द मार्केटिंग एड्स एंड ऑल. ठीक है, so this is the first thing, this is the second thing, and this is the third thing, and the fourth thing is that you know everything, मतलब you know in and out of the industry. मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रो लाइक हाउ वी कैन ग्रो दिस ई कॉमर्स, व्हाट इज़ द फ्लॉज इन दिस, व्हाई दिस इज़ नॉट ग्रोइंग, तो आपके पास इन एंड आउट सब आइडिया होना चाहिए कि हाँ दिस इज़ द मेन रीजन व्हाई इट इज़ नॉट ग्रोइंग. ठीक है, तो ये सब चीज़ें तब आएंगी ना व्हेन यू हैव ऑलरेडी वर्क फॉर द एटलीस्ट 5 to 10 क्लाइंट्स. एंड बहुत सिंपल, देखो यार, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक यू नो कन्वर्ट यू और समथिंग लाइक कन्विंस यू कि आप स्टार्ट करो एजेंसी. नो, आई एम हियर टू गिव यू द रॉ नॉलेज. ठीक है, एंड रॉ नॉलेज के अकॉर्डिंग यही एक्चुअल फैक्ट है दैट विदाउट डूइंग द फ्रीलांस आपको कभी भी अपनी एजेंसी ओपन नहीं करनी चाहिए. दिस इज़ द वेरी ब्रूटल थिंग विच आई एम जस्ट टेलिंग यू, नो वन विल एल्स टेल यू, क्योंकि सबका सिंपल सा क्या फंडा होता है विच आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, जो जिस ट्रैप में मैं भी ऑलरेडी फंस चुका हूँ. आपको लोग फ्रीलांस बिजनेस के लिए, चलो फ्रीलांस के लिए इफ़ यू आर आस्किंग फॉर एनी हेल्प और यू आर टेकिंग एनी मेंटोरशिप, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है एंड हाउ टू ग्रो इट आउट एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला. तो फ्रीलांस में यू नीड समवन हु कैन कंसल्ट यू, हु कैन जस्ट गिव यू द मेंटोरशिप. बट अगर आपको कोई डायरेक्टली ये कह रहा है कि डायरेक्टली आप अपना एक एजेंसी ओपन करो, दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, बिकॉज यार एजेंसी इज नॉट दैट मच ईजी. एजेंसी इज गोइंग टू टेक एफर्ट्स, एजेंसी इज गोइंग टू टेक टाइम, सो यू नीड टू बी सो मच डेडिकेटेड एंड पेशेंट विथ दिस थिंग. ठीक है, तो पहले फ्रीलांस करो, कम से कम 5-10 क्लाइंट निकालो, वहाँ से कुछ पैसे निकालो सो दैट यू कैन स्पेंड इट ऑन द एड्स. ठीक है, एंड अगर आपसे डायरेक्टली कोई कह रहा है कि एजेंसी ओपन करो, तो भाई आपके साथ स्कैम होने वाला है, क्योंकि उनका सिंपल से क्या फंडा होता है कि वो आपको कहेंगे कि आई कैन हेल्प यू विद जनरेटिंग द यू नो क्लाइंट्स एंड ऑल, मैं आपको क्लाइंट लाने में हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. बट एट द एंड एवरीथिंग गेट फ्लॉप, बिकॉज उनका कमिटमेंट तो पूरा हो जाता है कि लीड्स आ जाते हैं आपके पास. ठीक है, आपके पास अपॉइंटमेंट आ जाते हैं, बट क्लोजिंग का क्या भाई, क्लोजिंग का कौन बताएगा? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार, क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन बताएगा? तो एटलीस्ट इस पोजीशन को पास करने के लिए यू नीड दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल थिंग. तो अब चलो मान लो आपने 5 क्लाइंट के साथ काम कर लिया, 10 क्लाइंट के साथ काम कर लिया, नाउ यू वांट टू ग्रो. अब आपको ग्रो करना, आप अपनी एजेंसी कैसे ओपन करोगे? ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो अब एजेंसी ओपन करने का सबसे फर्स्ट प्लेस पहला स्टेज क्या है? दैट यू हैव टू नेम इट. ठीक है, यू हैव टू नेम इट, देन यू हैव टू फाइंड आउट अ niche, then you have to build a offer, then you have to do the lead generation. ठीक है, then you have to do the sales और closing. ठीक है, एंड लीड जनरेशन के बाद यू कैन से इसी में आ जाता है आपका प्राइसिंग वगैरह भी. ठीक है, इसी में आपका प्राइसिंग भी आ जाता है. देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू द डिलीवरेबिलिटी. ठीक है, अब देखो लोग सोचते हैं ना कि यार डिलीवरी तो मैं कर दूंगा, ये पार्ट सबको बहुत ईजी लगता है. जब आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचे होते हो ना, तो आपको लगता है कि यार क्या ईजी पार्ट है. तो
आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। नेम इट भाई, आज के टाइम पे क्लॉड है, चैट जीपीटी है, ब्ला ब्ला, बहुत टूल्स हैं, आप यूज़ इट। ये स्टेप इज़ गोइंग टू बी ईजी एट ऑल। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग नहीं किया अभी तक, या फिर आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि भाई मैं फ्रीलांस नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मैं छोटी मोटी नॉलेज इकट्ठा करके आई वांट टू स्टार्ट माई ओन एजेंसी, तो मेरे कहने पे तुरंत कोई निश को फाइंड आउट मत करना। जो भी आपके पास निश आए, जो भी आपके पास काम आए, उस काम को पहले पकड़ो। एटलीस्ट 10 लोगों के साथ काम करो, 5 लोगों के साथ काम करो, एंड वहाँ से पता लगाओ कि भाई कौन सा इंडस्ट्री मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर आप एक पर्टिकुलर निश पे जा सकते हो, ठीक है, अगर आप एजेंसी ओपन कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आ रहे हो तो यू आर ऑलरेडी सॉर्टेड कि भाई मुझे क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, ठीक है। देन बिल्ड ऑफर, ठीक है। अब ऑफर बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि भाई ऑफर शुड बी सो मच क्लियर, ठीक है। ऑफर शुड बी सो मच क्लियर, एंड यहाँ पे जो सामने वाला क्लाइंट है उसके पास कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्क उसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट ही और सी हैज़ डन। तो रिटर्न, रिस्क और रिटर्न, रिजल्ट एंड इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को लेके कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए क्लाइंट के पास, ठीक है। तो इस यू हैव टू क्रिएट द कंप्लीट सेटअप और द ऑफर अकॉर्डिंगली। तो एक ऑफर कैसा हो सकता है, ठीक है, एक बेटर ऑफर कैसा हो सकता है। Okay, so I have restarted the video, ठीक है। So what you can do in offer that we generate 30 to 35 qualified appointment every fortnight using our system, right? We can SYSTM system। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा ना, कभी भी अपना कोई भी चीज़ सेल करो, ठीक है। इफ़ यू आर इन मार्केटिंग, इफ़ यू आर इन द कंटेंट मार्केटिंग और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, सो ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अ सिस्टम। मतलब ऐसे रैंडम चीज़ें मत शेयर किया करो, ठीक है। if you are building an agency, so here you are not selling the video editing, you are not selling the graphics, you are not selling the post, here you are selling the result। and result कैसे आता है? result is come when the system is there। तो always try to build a system, ठीक है, एंड उसका एक प्रॉपर एक नाम दो। जस्ट मेरे सिस्टम का नाम है AAA सिस्टम, राइट, AAA सिस्टम, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक नाम दो अपने सिस्टम का, ठीक है। So what you are guaranteeing here, we generate 30 to 35 qualified appointment every fortnight using our system, or we work until will not achieve the result, until will not achieve the result, और विल वर्क फॉर फ्री, ठीक है। यहाँ पे फ्री डाल देना भाई, नहीं तो क्लाइंट कहेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे भाई, फॉर फ्री, ठीक है। until will not generate the result। तो what you are doing here, आप सबसे पहले तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर गारंटी करो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप एक यहाँ पे टाइम दे रहे हो, ठीक है। फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक सिस्टम बता रहे हो, आप एक फ्रेमवर्क बता रहे हो कि इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ पे एक उनका जो रिस्क फैक्टर है वो कम कर रहे हो, फ्री क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज द एग्जैक्ट स्टेप और एग्जैक्ट फ्रेमवर्क विच यू कैन यूज टू बिल्ड एंड क्राफ्ट योर ओन ऑफर, एंड दिस वर्क्स एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। बिकॉज एट द एंड क्या मैटर करता है कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में एक पर्टिकुलर रिजल्ट, ठीक है, एंड अगर वो पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं आता तो आपको क्या मिलेगा एट द एंड, ठीक है। यू विल गेट योर ऑल द मनी बैक और यू विल अचीव द रिजल्ट, ठीक है। तो ओवरऑल यही मैटर करता है, ठीक है। तो ऑफर बिल्डिंग का सिंपल सेंस इतना है कि आपको अपना रिस्क अवर्सल कम करना है क्लाइंट का, एंड यू हैव टू गिव अ प्रॉपर डेडलाइन विद अ प्रॉपर सिस्टम विद अ प्रॉपर नेमिंग, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है लीड जनरेशन, ठीक है। अब देखो लीड जनरेशन के बथेरे टेक्निक्स हैं, मतलब इफ़ यू विल गो इन टू द मार्केट ना तो आपको बहुत टेक्निक मिल जाएंगे कि आउटरीच कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग विच आई कंसीडर इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इज़ अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड ऑल। अगर आपको कोई ये कहता है कि फ्री में है इतने लीड्स, 1000 लीड्स, 5000 लीड्स जनरेट करो, आई एम टेलिंग यू दैट इज़ नॉट गोना वर्कआउट। आई हैव ट्राइड अ लॉट। मैंने 20 लोगों की टीम बैठा रखी थी, मतलब मैंने सब कुछ कर रखा है जो आप सोच रहे हो, मैंने सब करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि जीरो अमाउंट में कोई बिजनेस ओपन नहीं होता है,
ट्रस्ट मी, नो एट देर इज़ नो एनी बिजनेस। आप मेंटोरशिप में पैसे लगाओगे, आप सीखने में पैसे लगाओगे, आप एग्जीक्यूशन में पैसे लगाओगे, आप पैसे लगाओगे ही लगाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बिना पैसे लगाए कोई बिजनेस ओपन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन दिस थिंग प्रायरली कि भाई पैसे रहने चाहिए आपके पास कुछ, ठीक है। दैट्स वाई पहले फ्रीलांसिंग करो तब आप एजेंसी में आना। तो सबसे पहली चीज़ यार, अगर आपको लीड जनरेशन करना है ना, तो आप मेटा एड्स का यूज़ करो, ठीक है। आई एम टेलिंग यू भाई, मेटा एड्स से क्या होता है दैट यू हैव द एक्सेस टू ऑल द काइंड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑल द काइंड ऑफ ICP, मतलब जो चाहो आप ऐसे लोगों को टारगेट आउट कर सकते हो। सो दैट इज़ द मेन बेनिफिट विच यू कैन जस्ट गो विद दैट। सो एटलीस्ट स्टार्टिंग भी कर रहे हो तो 500 to 800 रुपीज़ से स्टार्ट करो, ठीक है, पर डे। आपको ट्रस्ट मी, अगर आपकी ICP अच्छी है, आपका ऑफर अच्छा है एंड आपके पास टेस्टिमोनियल है, केस स्टडी है, डेफिनेटली क्लोजिंग विल बी डन, लाइक क्लोजिंग होगी। इट्स नॉट लाइक दिस कि मतलब आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। मे बी स्टार्टिंग में 100 नहीं, 100 में से लाइक 80% या फिर 70% ना हो, एटलीस्ट 30% होगा, एटलीस्ट 20% होगा, एटलीस्ट 10% होगा। सो जस्ट ट्राई टू गेट वन सिंगल डील एवरी सिंगल वीक और एवरी सिंगल ट्वाइस लाइक विद इन 2 or 3 days। दिस इज़ वाई मेटा एड वर्क्स द बेस्ट। क्योंकि अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है ना, अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है, अगर आपके ऑफर अच्छे हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट स्टार्ट लाइक क्रिएटिंग एन एड, रनिंग एन एड्स, एंड एटलीस्ट भाई 10 से 20 हज़ार रुपये का तो बजट लेके चलो यार, कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हो तो। एंड इस पैसे को invested in the business, in the ads, and from there you will definitely get the leads and try to close them, ठीक है। तो लीड जनरेशन के पीछे बहुत मत भागो, बिकॉज मेटा एड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन जस्ट गो फॉर। अदरवाइज इफ यू वांट टू बिल्ड अ टीम, सो यू कैन डू द आउटरीच एंड ऑल, बहुत सारे लीड्स पड़े हुए हैं, भतेरे लीड्स हैं, जस्ट गो फॉर दिस। नाउ सेल्स को तो मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है, सेल्स के लिए मैंने तो ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखे हैं, बहुत लेंदी वो भी, सो जस्ट गो एंड वॉच दैट। डिलीवरी वाला पार्ट विल नॉट कवर दिस, बिकॉज सबकी डिलीवरी अलग अलग होती है, ठीक है। तो डिलीवरी में ओवरऑल क्या मैटर करता है कि हाउ एफिशिएंट यू आर, एंड समटाइम थिंग्स गेट अप एंड डाउन, तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड टू एंड फ्रेमवर्क। मतलब अगर एक एजेंसी ओपन करना है ना, तो बहुत देखो यार, मैं कभी बिलीव नहीं करता कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाओ। ट्राई टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज यू कैन मेक, दैट इज़ द स्किल। अब आप को ये करो वो करो, भाई इतनी ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव क्लॉड, यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव जेमिनी, यू हैव परप्लेक्सिटी, आपके पास इतने टूल्स हैं, जस्ट यूज़ एंड लर्न द थिंग्स, आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। द ओनली थिंग इज दिस कि आपका एग्जीक्यूशन मैटर्स द मोस्ट, एवरी टाइम एग्जीक्यूशन विन एंड आइडिएशन एंड प्लानिंग फेल्स, ठीक है। तो हमेशा अपना एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रखो, दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू, ठीक है। तो वॉट वी हैव लर्न सो फार कि अपने एजेंसी का एक सिंपल सा अच्छा सा कुछ सुंदर सा नाम दो, ठीक है। ब्रांडिंग वार्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो, फिर एक पर्टिकुलर फाइंड आउट करो, निश को फाइंड आउट करो, ठीक है। निश फाइंड आउट करते ही उस निश के अराउंड एक ऑफर क्रिएट करो। ऑफर में रिस्क कम होना चाहिए, क्लाइंट का ROI क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन लीड जनरेशन, इफ़ यू वांट टू गो बाई इंस्टाग्राम, गूगल के बहुत सारे तरीके हैं, जस्ट गो एंड यूटिलाइज दैट। अदरवाइज मेटा एड पे एड रन करना स्टार्ट करो, दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड डोंट गो फॉर एनी एजेंसी, क्योंकि 20,000 रुपये का तो आपका बजट है। कोई एजेंसी से कराओगे तो 5,000 तो वही आपका खा जाएंगे, 10,000 वही आपका खा जाएंगे, ठीक है। कोई छोटी एजेंसी है तो सो आई वुड से कि भाई 10,000 20,000 का बजट है तो खुद सीखो एंड खुद करो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हार्ड एट दिस लेवल, ठीक है। तो यू कैन डू दिस फ्रॉम योर एंड। सेल्स क्लोजिंग के लिए यू कैन जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियोज़, ठीक है, दैट्स द थिंग। डिलीवरी के लिए योर टर्न अराउंड टाइम, योर ऑपरेशन जो शुड बी स्मूथ, ठीक है। तो उसके लिए इफ़ यू वांट टू, आई कैन क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, बट मुझे इन्हीं तो का एक्सपीरियंस है, सो आई विल गो विद दैट ओनली, ठीक है। अदरवाइज दिस इज ऑल हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन एजेंसी, एंड स्टार्टिंग हमेशा फ्रीलांसिंग से करना, दैट इज़ अ बेटर अप्रोच, ठीक है। सो टिल देन बी अ ड्रीमर, बी अचीवर, बाय।